Hello students, a very welcome to all of you. Today we are going to start with a very important chapter in JEE, that is nothing but limits. Now we have already done the theory part of it. Now today we are going to start the entrance and the JEE part of the topic limits. But before we move on to the JEE part of it, let us first see the definition and the basic funda which we have done in the theory lectures, and then we'll move on to the entrance part of it. Okay. चलो तो प्लीज टॉपिक का नाम लिखिए आप लिमिट्स एंड इन दिस लेट अस फर्स्ट राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ लिमिट, मतलब एग्जैक्टली लिमिट होता क्या है, बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे. ओके, so write down under this, write down if y is equal to f of x is a real valued function of x. If y is equal to f of x is a real valued function of x and x approaches closer and closer towards a without making x equal to a. That is, x is not equal to a. Without making x is equal to a का मतलब है x is not equal to a. X approaches closer and closer towards a without making x is equal to a. That is, ब्रैकेट में लिख लो आप, x is not equal to a. Okay, then we say limit x is tending towards a of f of x is equal to L. Definition: limit x tending towards a of f of x is equal to L, and put a box over this. इसके ऊपर आप बॉक्स डाल दीजिए. Where, for your reference, write down where L is the limiting value. Means we have seen in the theory lectures also. I have given you with the help of an example. क्या होता है? As x is going closer and closer towards some value, as x is going closer and closer towards a, at that time f of x will go closer and closer towards a particular value that is denoted by the notation L. जिसको हम बोलते हैं L is called as the limiting value of the function. ठीक है ना? So y is equal to f of x is a real valued function of x. Real valued function of x का meaning होता है that function is having the real values, and as x approaches towards a, we can say x is tending towards a. X approaches a means in mathematical way we are saying x is tending towards a. I have explained in theory lecture in detail. Okay, without making x is equal to a, then limit x tending towards a of f of x is equal to L. This is nothing but definition of a limit. Please make a note of this, then we'll move ahead. Okay, now in limits we have done the concept of left hand limit and right hand limit. We are familiar with that. चलो तो अभी उसको हम इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट. तो फॉर दैट व्हाट यू डू, you just draw a number line. आप ये draw करो. I'm drawing on the board. You also draw along with me. ठीक है? This number line is from minus infinity to plus infinity. ठीक है? अभी आप मान के चलिए यहाँ पे कोई पॉइंट है x is equal to a. ठीक है? Now what will happen if this is the point x is equal to a? So all the values which are greater than a से जितने भी बड़े वैल्यूज है वो सब राइट हैंड साइड पे होंगे, और ए से जितने भी छोटे वैल्यूज होंगे वो सब लेफ्ट हैंड साइड में होंगे.
So what do I mean to say? That all the values of x which are greater than a are on the right hand side. अभी right hand limit में क्या होता है students? Right hand limit में x is approaching towards a from the right. We have done in the theory lectures. I have explained with the help of example. So by chance, if you don't know this concept, so please see the videos of the theory lecture and then you can see this. Okay. X is greater than a on the right hand side होता है. Now x approaches towards a from the right. X approaches towards a from the right. उसीलिए हम इसको बोलते हैं right hand limit. इसको हम denote कैसे करते हैं? Write down. It is written this way. Limit x is tending towards a plus fx. ऐसा लिखते हैं हम उसको. Limit x is tending towards a plus fx and that is called as nothing but our ये होता है right hand limit RHL. अच्छा, इसमें जब हम substitution method use करते हैं, when we use method of substitution, we write down let x is equal to a plus h. x को a plus h assume करके चलते हैं because x is tending towards a plus है. So when we use substitution, we write down let x is equal to a plus h. So right hand limit. Now the notation x is tending towards a plus का meaning होता है x is always greater than a, obviously because it is on the right hand side of a. ठीक है. But approach कैसे होता है? It approaches from right towards a, इसलिए हम उसको right hand limit बोलते हैं. ठीक है. Note down this. अच्छा, अभी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है? प्लीज पे अटेंशन. x is lesser than a. यहाँ पे जो वैल्यूज है x के लेफ्ट में, obviously all the values of x are less than a. Now what is happening? X is approaching towards a from the left. ऐसा अप्रोच हो रहा है, देखो x is approaching towards a from the left. लेफ्ट से अप्रोच हो रहा है तो इसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलते हैं. तो हाउ डू वी डिनोट द लेफ्ट हैंड लिमिट? इट इज रिटर्न एज लिमिट x is tending towards a minus of fx. X is tending towards a minus of fx, which is written as or denoted as LHL, short form for left hand limit. अब इसमें जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, जब हम सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे तो व्हाट डू वी राइट डाउन? लेट x is equal to a minus h लिखते हैं. ठीक है. So I've divided this into two half. ये है right hand limit and this is nothing but left hand limit. So please make a note of this diagrammatical representation. यहाँ तक definition था लिमिट का. अब ये इंट्रोडक्शन है कंसेप्ट ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट. तो यहाँ पे एक नोट लिख देता हूँ. कंटिन्यू राइटिंग नोट. limit exists if and only if right hand limit is nothing but equal to left hand limit. लिमिट एग्जिस्ट तभी होगा जब राइट हैंड लिमिट का वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम है. ओनली देन वी से दैट द लिमिट एग्जिस्ट. ओके. सो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो. ये भी पार्ट आप लिख लो और ये नोट भी लिख लो, देन विल मूव अहेड. Okay students, now what we'll do, now let us move on to algebra of limits. ये हो जाने के बाद, okay, let's just rub this off. अभी आप नेक्स्ट हेडिंग लिखिए. Write down. This next heading is nothing but algebra of limits. That is nothing but they are also sometimes known as rules of limits. Algebra of limits को हम rules of limits भी बोलते हैं. Okay, write down. इसमें लिखिए let fx and gx
be any two functions of x and k belongs to set of real numbers. If fx and gx are any two functions of x and k belongs to set of real numbers, or k is a constant, you can say, ब्रैकेट में आप देख लीजिए कांस्टेंट. इनफैक्ट यू कैन राइट डाउन कांस्टेंट, नॉन जीरो कांस्टेंट. कैसा कांस्टेंट होना चाहिए? इट शुड बी अ नॉन जीरो कांस्टेंट. देन फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखिए, राइट डाउन फर्स्ट वन, लिमिट x is tending towards a f of x plus g of x is nothing but equal to, write down, limit x is tending towards a of fx plus limit x tending towards a of gx. All these properties we have seen in theory lectures also, but for your reference, if you are new to this topic, I am writing down these properties so that आपको आसानी से सब कुछ समझ में आ सकता है. Okay. Now this property says that limit split होता है if there is plus between the two functions. Same is applicable if there is minus between the two functions, and same is applicable if it is multiplication between the two functions. So plus हो, minus हो, multiplication हो, limit split होता है. Okay, write down all the three things written together. So property one में सब आ गया, plus minus into. Now write down property number 2. Limit x tending towards a of fx upon gx. This is quotient rule. हमने अभी एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन तीन रूल एक साथ देखे. अभी दिस इज क्वोशिएंट रूल, दैट इज डिवीजन. सो दिस विल बी इक्वल टू, राइट डाउन, लिमिट x is tending towards a of fx upon limit x is tending towards a of gx. मतलब अपॉन में रहेगा तो लिमिट न्यूमरेटर को भी स्प्लिट होता है और डिनोमिनेटर को भी स्प्लिट होता है, provided there is one condition in this. Provided limit x tending towards a of g of x is not equal to 0. इसमें जो डिनोमिनेटर है वो नॉन जीरो होना चाहिए, तो ही हम लिमिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर सकते हैं. दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी. Okay, third property, write down, limit x is tending towards a of k into fx. So that is nothing but equal to k times of limit x is tending towards a of fx. So what does this property say? If constant term is present inside the limit, then that constant term can be written outside the limit. ठीक है, चलो प्लीज राइट डाउन दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो. फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया. प्रॉपर्टी नंबर 5, लिमिट, सॉरी थर्ड वन इज ओवर, राइट, फोर्थ नहीं, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ आएगा. फोर्थ प्रॉपर्टी, राइट डाउन, लिमिट x is tending towards a of अंडर रूट ऑफ fx, ऐसा रहेगा. So that will be nothing but equal to under root of limit x tending towards a of fx. Fourth property हो गया. Then write down the fifth property. That is nothing but if you are having limit x is tending towards a of mod fx. Mod में अगर कोई फंक्शन है तो this will be nothing but equal to mod of लिमिट एक्सटेंडिंग टुवर्ड्स a of fx. लिमिट मॉड के अंदर भी जाता है, लिमिट रूट के अंदर भी जाता है.
Then sixth property and an important one, that is nothing but limit x tending towards a of fx raised to gx. मतलब अगर एक फंक्शन के पावर में अगर दूसरा फंक्शन है तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a ऑफ fx होल टू द पावर, इसके पावर में आएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a ऑफ gx. तो लिमिट पावर में भी स्प्लिट होता है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स a fx रेज टू gx, तो लिमिट fx को भी जाएगा और लिमिट जो पावर में फंक्शन है उसको भी लिमिट स्प्लिट होगा. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, द सिक्स्थ वन. ठीक है. नाउ राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 7. सेवेंथ प्रॉपर्टी लिख लीजिए. सेवेंथ प्रॉपर्टी राइट डाउन लिमिट x is tending towards a, limit x is tending towards a of f of gx, that is nothing but composite function. ये f o g of x हो सकता है या g o f of x हो सकता है. Okay, so this will be nothing but equal to f of limit x is tending towards a of g of x. This is for composite function, this property. Okay, then property number 8, limit x is tending towards a of log fx. ऐसा रहेगा तो this will be equal to log of limit x tending towards a of fx. तो एट्थ प्रॉपर्टी कैसा है, लिमिट ऑफ अ लॉग ऑफ अ फंक्शन इज इक्वल टू लॉग ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन. तो अगर लिमिट एंड लॉग का कॉम्बिनेशन है तो वी कैन इंटरचेंज लिमिट एंड लॉग. दैट इज व्हाट प्रॉपर्टी नंबर 8 says. So please note down all the properties till property number 8. ये सारे प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव रिटन द प्रॉपर्टीज. नाउ लेट्स मूव अहेड आफ्टर दिस प्रॉपर्टीज के बाद. Now we are going to see evaluating the limits. तो हमने कौन से मेथड्स सीखे हैं लिमिट्स को इवैल्यूएट करने के. So please write down next heading, evaluating limits. So we will first only observe which all types of limits we have evaluated. ठीक है. So evaluating limits में the first and the foremost we have seen algebraic limits. Algebraic limits. तो सबसे पहले हमने इसके ऊपर प्रॉब्लम्स किए थे. अभी एल्जेब्राइक लिमिट्स में हमने कौन से मेथड सीखे थे. राइट ऑन द फर्स्ट वन. द फर्स्ट वन वाज डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन. और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूटिंग द लिमिट, ऐसा लिख लो. मतलब जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता था और डिनोमिनेटर नॉन जीरो होता था इसलिए हम लिमिट का वैल्यू डाल देते. फर्स्ट वन वाज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूटिंग लिमिट, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते थे, प्रॉब्लम वाज गेटिंग ओवर. सेकंड वाज फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन
method. Third that we have done was rationalization method. फैक्टराइजेशन मेथड के बाद रैशनलाइजेशन मेथड. ठीक है. नाउ जब आपने सीखा होगा तो मे बी यू माइट हैव डन फर्स्ट रैशनलाइजेशन एंड देन फैक्टराइजेशन, बट आई हैव डन इट इन दिस ऑर्डर, सो डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता है. देन फिर उसके बाद फोर्थ वन वी हैव डन एलसीएम एंड फैक्टराइजेशन मेथड. एलसीएम एंड फैक्टर मेथड दोनों एक साथ करते थे, फैक्टराइज करते थे और फिर हम एलसीएम लेते थे, तो इसलिए हम इसको एलसीएम एंड फैक्टर मेथड बोलते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ वन इफ यू रिकलेक्ट वाज इंडेक्स मेथड. इंडेक्स मेथड है, अभी रिकलेक्ट करो. इंडेक्स मेथड में एक फॉर्मूला था जो हम अप्लाई करते थे. इट वाज दिस फॉर्मूला, लिमिट x is tending towards a x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1. इंडेक्स मेथड में ये फॉर्मूला हम यूज करते थे. तो प्लीज राइट डाउन इंडेक्स मेथड. फिर उसके बाद हमने किया था लिमिट्स एट इंफिनिटी. नो डाउट कि ये दिस वाज द वेरी लास्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक, लिमिट्स एट इंफिनिटी, बट वी हैव डन दैट अंडर एल्जेब्राइक लिमिट, तो इसीलिए लिमिट्स एट इंफिनिटी यहाँ पे लिखा हुआ है. So algebraic limits में we have done so many types. ठीक है. Then we move on to trigonometric limits. Trigonometric limits किया था इसमें, and इसमें भी हमने type wise किया था. In this also we have done type wise. Trigonometric limits में जो first type हमने किया था, that was nothing but problem based on fundamental identity. Problems on fundamental identity. ये हमने पहले किया था फंडामेंटल आइडेंटिटीज के ऊपर. सेकेंडली वी हैव डन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर वर टू स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. इसके ऊपर लिख लीजिए आप, लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 sin थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1. ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के ऊपर हमने प्रॉब्लम्स किए थे. एंड द सेकंड वन वाज लिमिट थीटा टेंडिंग टुवर्ड्स 0 tan थीटा बाय थीटा इज इक्वल टू 1. ये दोनों के ऊपर हमने एग्जांपल्स किए थे. वेयर वी हैव टू रिमेंबर दैट थीटा इज एंगल मेजर्ड इन रेडियंस. थीटा is always measured in radians, theta radians. उसमें थियरी लेक्चर्स में हमने एग्जांपल्स भी किए थे. एक प्रॉब्लम था जिसमें डिग्री दिया था, तो हमने रेडियंस में कन्वर्ट करके फिर एग्जांपल को हमने इवैल्यूएट किया था. So we have done problems dependent on this result. Then trigonometric limits में ही आगे कंटिन्यू करते हैं हम. Trigonometric limits में third thing we have done is problem based on substitution method. Substitution method वाले examples किए थे, not substituting the value of the limit. Substitution method use किया था. इसमें क्या हो रहा था, इसमें as x was tending towards a, limit x tending towards a वाले problems थे. तो इसमें क्या करते थे, लेट x इज इक्वल टू a प्लस h एज्यूम करते थे while solving the problem, and then we were changing the limits as x is tending towards a, therefore h was tending towards 0. इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आई हैव गिवन टू यू इन द थियरी लेक्चर्स. ऐसा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड जब यूज करते थे उसमें ये सारी चीजें आती थी. उसमें फिर हम कभी अलाइड एंगल फॉर्मूला यूज करते थे, कभी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला यूज करते थे. देयर वर डिफरेंट टाइप्स, सो यू कैन गो थ्रू द वीडियोस ऑफ द थियरी लेक्चर्स इफ यू वांट द हेल्प रिगार्डिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रॉब्लम. तो ये 3 टाइप्स हमने
ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स में किए थे। तो प्लीज मेक अ नोट ऑफ दीज 3। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड थिंग वी हैव डन logarithmic and exponential limits. Logarithmic and exponential limits, ये हमने टाइप किया था logarithmic and exponential limits वाला। ठीक है, अभी इसमें भी हमने बहुत सारे रिजल्ट्स के ऊपर वर्किंग और बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी लिए हैं थियरी लेक्चर्स में। ओके, चलो आई विल राइट डाउन द रिजल्ट्स आल्सो। अंडर दिस द फर्स्ट रिजल्ट दैट वी टुक, ठीक है, was nothing but limit x is tending towards 0, 1 plus x to the power 1 by x is equal to e। इस रिजल्ट के ऊपर हमने एग्जांपल्स लिए हैं। Then the second one that we took was limit x is tending towards 0, log of 1 plus x upon x is equal to 1। इस रिजल्ट के ऊपर हमने एग्जांपल्स लिए हैं। Then the third one under the फिर आता है limit x is tending towards 0, a raised to x minus 1 upon x is equal to log a to the base e। इस रिजल्ट के ऊपर हमने एग्जांपल्स दिए हैं। And the fourth one and the last one is nothing but limit x is tending towards 0, e raised to x minus 1 upon x is nothing but equal to log e to the base e, and that is nothing but equal to 1। यहाँ पे कंडीशन जो थर्ड रिजल्ट है, यहाँ पे कंडीशन था प्रॉब्लम में that a should be greater than 0, तो ये कंडीशन तो रहेगा इस पे भी। and this was the fourth result which we have done। इसके ऊपर एग्जांपल्स हमने थियरी लेक्चर्स में ऑलरेडी किए हुए हैं, एंट्रेंस में भी करेंगे बट एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। so please make a note of this for your reference also that we have already done this thing। now let's move on to some results and time saving results। तो आप ऐसा हेडिंग लिख दीजिए, results and time saving results। now very important part of the topic, कुछ रिजल्ट्स रहेंगे और कुछ टाइम सेविंग रिजल्ट्स रहेंगे। तो हाउ दे आर गोइंग टू सेव आवर टाइम आई विल टेक डाउन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल जहां पे रिक्वायर्ड एंड नेसेसरी है। ओके, चलिए तो लिखिए फर्स्ट रिजल्ट यू राइट डाउन लिमिट x is tending towards a, x raised to n minus a raised to n upon x minus a is equal to n into a raised to n minus 1। ये रिजल्ट है, this is the result, first one। now write down second one is a time saving result। ठीक है, write down, I'll explain। okay, limit x is tending towards a, x raised to m minus a raised to m upon x raised to n minus a raised to n is equal to write down m upon n into a raised to m minus n। ये हमारा टाइम सेविंग रिजल्ट। अब ये टाइम कैसे सेव करेगा, तो जल्दी से एक एग्जांपल ले लेते हैं। नाउ सपोज एन एग्जांपल व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन रिजल्ट नंबर 2, इसलिए उसके सामने लिखता हूँ। ठीक है, नाउ द एग्जांपल यू राइट डाउन लिमिट, सपोज फॉर एग्जांपल दिया है x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x रेज टू 5 minus 2 raised to 5 upon x raised to 3 minus 2 raised to 3 दिया है। So without thinking much we will just compare this problem with this result। तो अब कंपेयर कीजिए, m का वैल्यू यहाँ पर 5 है, n का वैल्यू इज 3 and a का वैल्यू इज नथिंग बट 2। So according to this short trick, what is this says? It is m upon n into a to the power m minus n। So according to this result, what will this become? 5 upon 3, 5 upon 3, that is m upon n
into 2 to the power 5 minus 3. ठीक है ना, हो गया, दैट्स इट। थोड़ा ये 3 में बड़ा कर देता हूँ, 5 minus 3 है। So this is nothing but equal to 5 by 3 remaining same, and that is nothing but 2 का square. So 2 square is nothing but 4. So answer is nothing but 20 by 3. That's it. Problem is over. With such a simple way, we have evaluated this example and got the answer as 20 by 3. But this was possible with this time saving result. तो ये हमें याद रखना है, ये याद रहेगा तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम विद द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। ठीक है, प्लीज मेक अ नोट ऑफ द एग्जांपल आल्सो। ठीक है, अभी थर्ड रिजल्ट पे जाते हैं। नाउ द थर्ड वन इज अ रिजल्ट which says that limit x is tending towards 0, ठीक है, sin x upon x is equal to 1. This is same applicable for limit x is tending towards 0, tan x upon x, they both are equal to 1. अच्छा, इसका रेसिप्रोकल भी 1 होता है, वो भी लिख लो आप, write down each and every point that is involved and important. Limit x is tending towards 0, x by sin x is also equal to 1, which is same as limit x is tending towards 0, x by tan x is also equal to 1, where x is measured in radians. आप लिख लीजिए, where x is an angle measured in radians. ऑलवेज। ये हो गया, रिजल्ट हो गई है। अभी इसके ऊपर आप टाइम सेविंग रिजल्ट आप नोट डाउन कर लो, राइट डाउन द फोर्थ वन। So what is the fourth one? Result says limit x is tending towards 0, sin kx by x is equal to k. That is nothing but equal to limit x is tending towards 0, tan kx by x is also equal to k. Sin kx by x या tan kx by x, and if it is limit x is tending towards 0, both of them are equal to k. ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। Now what does that example say? Suppose if it is given to us, limit x is tending towards 0, sin 3x by 2 upon x, ये evaluate करना है। Now compare the example with the time saving result. What does the time saving result say? जो भी x का कोएफिशिएंट है, sin फंक्शन हो या tan फंक्शन हो, जो भी x का कोएफिशिएंट है वही हमारा आंसर है, as simple as that. I repeat, whatever is the coefficient of x is the answer. अभी आप ये देखो, x का कोएफिशिएंट क्या है, 3/2, तो बस प्रॉब्लम इज ओवर, आंसर इज नथिंग बट 3/2. रिकलेक्ट, थियरी लेक्चर्स में हम कैसे करते थे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3/2 करते थे। अब वो करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, जो भी कोएफिशिएंट है, जो भी नंबर है, वही हमारा आंसर है। प्लस है तो प्लस आएगा, अगर नंबर नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। सपोज ये -3/2 होता तो आंसर -3/2 आ जाता, अभी तो प्लस है तो वो +3/2 आएगा। प्लीज मेक अ नोट डाउन ऑफ द एग्जाम्पल। ठीक है, ये फोर्थ वाला हो गया। फिफ्थ वाला रिजल्ट आप लिखो, राइट ऑन द फिफ्थ वन। लिमिट x is tending towards 0, sin mx upon sin nx is nothing but equal to m by n, which is same applicable for limit x is tending towards 0, tan mx upon tan nx रहेगा, then also it is equal to m by n. ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके सामने लिखता हूं मैं एग्जांपल।
तो से फॉर एग्जांपल इफ इट इज गिवन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड 0, अभी tan के लिए ले लेते हैं. सपोज इफ इट इज गिवन टू अस tan ऑफ 5x अपॉन tan ऑफ 7x दिया है. तो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट जो x का कोएफिशिएंट है वही आंसर है. m अपॉन n, m by n इज द आंसर. m by n, तो 5/7 इज द आंसर. प्रॉब्लम इज ओवर. जो भी कोएफिशिएंट है, 5/2 है तो इधर 5/2 आ जाएगा, 7/2 है तो इधर 7/2 आ जाएगा, वॉट एवर इट. अगर -5 है तो इधर -5 आएगा, -7 है तो -7 आएगा, वॉट एवर इट इज. ओके, राइट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. ठीक है, चलो तो एज द दिस ऑफ, और ये भी एग्जांपल्स में रब कर देता हूँ. 5th तक हो गया. अभी हम आगे बढ़ते हैं 6th ऑनवर्ड. अभी आप लिखिए 6th वन. लिमिट x is tending towards 0, sin of x degree upon x is equal to pi by 180, and this is also equal to limit x is tending towards 0, also applicable for tan of x degree upon x. Right, result number 6. ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं. एंड ऑब्वियसली pi by 180 लिखा है तो ये रेडियन है, अंडरस्टूड है. इफ वी डू नॉट राइट डाउन रेडियन का सिंबल इज अंडरस्टूड. डिग्री जहाँ पे है वहां पे तो हम लिखते ही है. तो लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, साइन ऑफ x डिग्री अपॉन x रहेगा या tan ऑफ x डिग्री अपॉन x रहेगा, तो इट इज नथिंग बट pi by 180 होता है. डायरेक्टली आप याद रख सकते हो. ओके, 7th वन, गेट डाउन. इट्स अ रिजल्ट लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 1 minus cos x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हम बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं. दैट डज नॉट मीन कि जो बाकी के रिजल्ट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है. प्लीज रिमेंबर स्टूडेंट, ईच एंड एवरी पॉइंट दैट आई एम गिविंग अंडर सिनॉप्सिस और जो रिवीजन पार्ट है JEE से पहले, जो हम एग्जाम्पल सॉल्व करने से पहले मैं आपको देता हूँ, ऑल दोज थिंग्स, ईच एंड एवरीथिंग प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सब कुछ मालूम होना चाहिए. ठीक है ना. तो ये आप 7th वन मार्क कर लीजिए. अभी हम थियरी लेक्चर्स में कैसे सॉल्व करते थे, 1 माइनस कॉस एक्स के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, या फिर हम 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज करते थे. ओके, चलो अभी 8th पॉइंट पे आते हैं. तो 8th वन इज अगेन अ टाइम सेविंग रिजल्ट. So this is limit x is tending towards 0, 1 minus cos mx upon x square is nothing but equal to m square by 2. ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप मार्क कर लो. 7th and 8th are to be remembered. Everything is to be remembered, but ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. Dependent on this, let's take down one example. Now suppose if it is given to me, limit x is tending towards 0, 1 minus cos 7x by x square को evaluate करना है. ठीक है, तो what I'll do, I'll compare this example with this shortcut, short trick. So what does the result says, m square, यहाँ पे जो नंबर रहेगा उसका स्क्वायर करने का डिवाइड बाय 2. तो नाउ जस्ट कंपेयर, यहाँ पे नंबर m के जगह पे 7 है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 2. तो 7 का स्क्वायर इज नथिंग बट 49. 49 by 2 इज द आंसर. हो गया, प्रॉब्लम खत्म. तो जो भी नंबर यहाँ पर है उसका स्क्वायर करने का डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट, ओवर. ओरली हम आंसर ला सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर दैट दीज शॉर्टकट्स आर ओनली एप्लीकेबल इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इन एंट्रेंस एग्जाम. थियरी लेक्चर में ये सब नहीं चलेगा, नॉट अलाउड. 0 मिलेगा इफ यू डू दिस इन थियरी. In entrance it is allowed to get the answers. Okay, 8 हो गया. चलिए 9th वन लिखते हैं. Limit x is tending towards 0 if it is 1 minus
cos mx upon 1 minus cos nx रहेगा, then the answer will be m square by n square. चलिए इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं हम. तो एग्जांपल इज लिमिट x is tending towards 0, 1 minus cos 2x upon 1 minus cos 5x दिया है. What does the time saving, what does the shortcut says? 1 minus cos mx upon 1 minus cos nx is m square by n square. मतलब इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर. Obviously, what will be the answer for this? 2 का स्क्वायर is 4 upon 5 का स्क्वायर is nothing but 25 और यही हमारा आंसर है प्रॉब्लम. That's it. Please make a note. ये टाइम सेविंग रिजल्ट है और ये इनके एग्जांपल्स है. ठीक है, राइट डाउन 9th one also. ठीक है, 10th वाले पे जाते हैं, टाइम सेविंग रिजल्ट पे. तो इट इज लिमिट x is tending towards 0, cos mx minus cos nx upon x square. Cos mx minus cos nx upon x square is nothing but equal to n square minus m square by 2. उल्टा हो जाता है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके ऊपर. तो इफ इट इज गिवन टू अस लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसा दिया है अगर हमें, एंड इफ इट इज गिवन टू अस मे बी से फॉर एग्जांपल cos 6x minus cos 4x अपॉन x स्क्वायर दिया है इवेल्युएट करने को. तो जस्ट कंपेयर, m का वैल्यू 6 है और n का वैल्यू 4 है, वो हम इस फॉर्मूला में या टाइम सेविंग रिजल्ट में डाल देंगे हम. व्हाट विल हैपन, n स्क्वायर तो मतलब 4 का स्क्वायर, तो दैट्स नथिंग बट 16 माइनस m का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर, तो दैट्स नथिंग बट 36 डिवाइडेड बाय 2. तो 16 माइनस 36 इज माइनस 20, माइनस 20 बाय 2, तो दैट्स नथिंग बट -10 इज द आंसर. देखो ओरली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, एकदम डायरेक्ट आंसर मिलता है. तो एंट्रेंस के लिए ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेविंग रिजल्ट हमारे बन जाते हैं. प्लीज मेक अ नोट टिल हियर द 10th one. ठीक है, चलिए 11th वाला लिखिए आप, 11th रिजल्ट. ठीक है, देन आई हैव टू रब दिस ऑफ बिकॉज बोर्ड पूरा ऑलमोस्ट भर गया है. So now next is limit x is tending towards 0. Almost ऐसा ही है वो भी. Put it down. It is cos mx minus cos nx upon cos px minus cos qx. ऐसा रहेगा. Then this will be nothing but equal to n square minus m square अपॉन क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. ये हमारा आंसर हो जाएगा. अब मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ इसके ऊपर, कि जैसा ऊपर वाले के लिए अप्लाई किया है वैसे इसके लिए आएगा. खाली यहाँ पे इतना है कि बाय 2 नहीं आएगा. यहाँ पे जो बाय 2 है, यहाँ पे बाय 2 नहीं आएगा, मतलब वो कैंसिल हो जाता है. इसमें भी अपॉन 2 आएगा, इसमें भी अपॉन 2 आएगा. तो वो जो अपॉन वाला 2 है वो कैंसिल हो जाता है एंड वी आर डायरेक्टली लेफ्ट आउट विद दिस. ओके, प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं. पॉइंट नंबर 12. ओके, राइट डाउन. लिमिट x is tending towards 0, sin mx minus sin nx upon x is equal to m minus n होता है. सिमिलरली इसी में tan के लिए भी लिख देता हूं मैं आपके लिए. लिमिट x is tending towards 0, tan mx minus tan nx upon x is equal to m minus n होता है. तो ये भी नोट डाउन कर लो.
दोनों केस में आपको m-n ही आंसर मिलेगा। चलो लेट्स टेक डाउन वन एग्जांपल। एग्जांपल मैं यहाँ पे फिलहाल सामने लिख देता हूँ। तो एग्जांपल चलो tan के लिए ले लेते हैं। इफ इट इज गिवन लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऐसा दिया है tan 9x माइनस tan 2x बाय x। इसको अगर इवेल्युएट करना है, what does the result is m minus n means the coefficient is to be subtracted। तो क्या हो जाएगा 9 minus 2, आंसर इज 7, प्रॉब्लम इज ओवर। ओरली खत्म हो जाता है वो तो। ओके ये 12th वाला हो गया, उसके ऊपर एग्जांपल हो गया। अभी 13th वाला रिजल्ट है। 13th रिजल्ट इज say down limit x is tending towards 0, 1 plus x to the power 1 by x is equal to e। ये रिजल्ट है 13th वाला। 14th वाला टाइम सेविंग रिजल्ट है। राइट डाउन लिमिट x is tending towards 0, 1 plus kx to the power 1 by x is equal to e raised to k। अभी 14th वाले पे एग्जांपल देख लेते हैं। 14th वाले पे क्या एग्जांपल आएगा, तो इसके ऊपर ऐसा एग्जांपल रहेगा। if it is given to us limit x is tending towards 0, 1 plus 5x to the power 1 by x, अगर ऐसा दिया है तो इसका आंसर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट, ये जो टाइम सेविंग रिजल्ट है उसके हिसाब से ये हो जाएगा e raised to 5। कंपेयर kx रहेगा तो e raised to k, तो 5x है तो e raised to 5। बट दिस इज ट्रू फॉर प्लस एज वेल एज माइनस। अगर यहाँ पे प्लस के जगह पे माइनस साइन होता तो यहाँ पे -5 आता। यहाँ पे +5 है इसलिए यहाँ पे +5 आया। अगर सपोज यहाँ पे -5 होता तो आंसर e raised to -5 हो जाता। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद 14th वाला रिजल्ट लिख लो। 14th वाला हो गया, 15th वाला लिख लेते हैं। 15th वन लिमिट x is tending towards 0, 1 plus mx upon 1 plus nx to the power 1 by x, अगर ऐसा रहेगा तो दिस विल बी इक्वल टू e raised to m minus n होता है। ओके राइट डाउन। अब ये इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो कैसे आएगा इसके ऊपर एग्जांपल, इफ इट इज गिवन लिमिट x is tending towards 0, 1 plus 7x upon 1 plus 2x whole to the power 1 by x दिया है। तो दिस विल बिकम नथिंग बट e raised to m minus n होता है। तो e raised to m minus n करेंगे तो what will this become 7 minus 2, तो आंसर इज नथिंग बट e raised to 5 होता है। प्लीज नोट डाउन टिल हियर। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द 16th वन। ओके नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू द 16th वन, इसी एग्जांपल में आपको चेंज करके बताता हूँ क्योंकि दोनों फिर प्लस के लिए एक माइनस पे लेके देखते हैं। सपोज अगर यहाँ पे माइनस साइन दिया है, इफ देर इज अ माइनस साइन ओवर हियर, -2x दिया होता व्हाट वुड हैव हैपेंड, ये बन जाता +2 एंड इन दैट केस इट वुड हैव बिकम e raised to 9। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा बिकॉज इट इज व्हाट e raised to m minus n, और अगर कंपेयर करेंगे तो n का वैल्यू -2 यहाँ पे डालेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलो रीड डाउन। नेक्स्ट 15th हो गया, नेक्स्ट इज 16th वन। लिमिट x is tending towards 0, a plus mx upon a plus nx to the power 1 by x is equal to e raised to m minus n whole divided by a। ये लिख लीजिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज ऑल्सो। इसके ऊपर एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो एग्जांपल विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर बेटर। लिमिट x is tending towards 0, अभी से फॉर एग्जांपल दिया है 6 plus 7x upon 6 plus 5x to the power 1 by x. This is given. Now just compare this example with the standard result. तो a के जगह पे 6 है
m के जगह पे 7 है और n के जगह पे 5 है, तो सब्स्टिट्यूट इट ओवर हियर। करना क्या है, ये याद रख के उसमें डालना है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, तो e रेज टू दिस विल बी 7 minus 5 divided by 6. Please check. m minus n divided by a. 7 minus 5 divided by 6. So this is nothing but e raised to 2 by 6, and 2 by 6 means it is nothing but e raised to 1 by 3. E raised to 1 by 3 is the answer that can be written as nothing but cube root of e. ऐसा भी लिख सकते हैं उसको, e raised to 1 by 3 को we can write down cube root of e also. So please write down the example, then I'll rub off and write down the remaining results over there. So they are all time saving results and they are surely going to save our time. Please limits आप ध्यान से करना students very much, because limits is a very important and the first chapter of the calculus, और इसके ऊपर ही continuity भी based है. So if you know the limits part very well, continuity एकदम आसान हो जाता है. ठीक है ना? चलो please note down till here, then we'll move ahead. चलिए रिजल्ट नंबर 17 की तरफ जाते हैं. तो रिजल्ट नंबर, चलो आई जस्ट कंटिन्यू इट ओवर हियर ओनली. रिजल्ट नंबर 17, आई ट्राई टू राइट डाउन ओवर हियर, शायद से 17 यहाँ पे आ जाएगा. राइट डाउन 17th रिजल्ट आप लिखिए. लिमिट x is tending towards 0 log of 1 plus x upon x is equal to 1 होता है. ये रिजल्ट है. 17th one is a result. 18th one टाइम सेविंग रिजल्ट है. लिमिट x is tending towards 0 log of 1 plus kx upon x is nothing but equal to k. जो कांस्टेंट है वही हमारा आंसर है, जो x का कोएफिशिएंट है वही हमारा आंसर होता है. से फॉर एग्जांपल ले लेते हैं. लिमिट x is tending towards 0 log of 1 minus 8x by 3 divided by x. अब इसका आंसर क्या होगा? Tell me what will be the answer for this. Yes, you can put in chat box and tell me. Yes, what you are saying, it is minus 8 by 3. Correct, बराबर है. इसका आंसर है minus 8 by 3. Absolutely correct. है ना? लिखिए. जो x का कोएफिशिएंट है वही आंसर है, एंड इट शुड बी विद द साइन. पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव आंसर आएगा. ये 18th वन हो गया. देन 19th रिजल्ट लिखिए आप. 19th वन, लिमिट x is tending towards 0 a raised to x minus 1 upon x is equal to log a to the base e. 19th result, where we all know that a should be positive, a should be greater than 0. 19th वाले में. ठीक है. अभी 20th टाइम सेविंग रिजल्ट लिख लो आप. So it is nothing but limit x is tending towards 0. अगर यहाँ पे रहेगा a raised to mx minus 1 upon x. If we have this, limit x is tending towards 0 a raised to mx minus 1 upon x, then this will be nothing but equal to m log a होता है. It is nothing but equal to m log a, which can be written as nothing but equal to log of a to the power m. इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं. Say for example, let's take down one example. If it is given to me, limit x is tending towards 0 5 raised to 3x minus 1 upon x. इसको evaluate करना है. तो write down, this will be further equal to, just compare. क्या होगा? m के जगह पे हमारे पास 3 है, a के जगह पे हमारे पास 5 है एग्जाम्पल में. So what will this become? It is m log a. So what will this become? This will become nothing but 3 log 5. That's it. And obviously 3 log 5
कैन बी रिटर्न एज नथिंग बट log of 5�3, ठीक है। एंड 5�3 मतलब 5 का क्यूब हो गया, एंड 5 का क्यूब इज नथिंग बट 125, तो इसको हम log of 125 भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली मैं log of 125 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, बिकॉज दिस 3 विल गो टू द पावर ऑफ 5 एंड 5 क्यूब इज नथिंग बट 125, और यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। प्लीज नोट डाउन 20th रिजल्ट, देन विल मूव अहेड। ठीक है, 21st रिजल्ट आप लिख लीजिए, रिजल्ट नंबर 21, इट इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e रेज टू x -1 अपॉन x रहेगा। हाँ, अभी मैं रिवाइज करते वक्त भी मैंने इसको पहले लिखा था, when we have done that part earlier. So this will be nothing but equal to log e to the base e, and this is nothing but equal to 1. Please remember that जब भी log function लिखा है और उसका बेस नहीं लिखा है, तो by default it is understood that the base is nothing but e itself. Natural base होता है इसका कैलकुलस में, ठीक है। 21st is over. अभी आप 22nd लिख लीजिए। Now 22nd onwards जो शॉर्टकट मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, that also you can remember, और इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हमने थियरी लेक्चर्स में ऑलरेडी किए हुए हैं। We have already done these examples. So if anyone of are you unaware of it, so you can see the video lectures, ठीक है, of that part. Write down 22nd में limit x is tending towards 0 a raised to x minus b raised to x अपॉन x, ऐसा रहेगा। तो दिस विल बी नथिंग बट इक्वल टू log ऑफ a बाई b होता है। 22nd रिजल्ट। 23rd यू राइट डाउन, इफ इट इज लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, इफ इट इज a रेज टू x प्लस b रेज टू x माइनस 2 रेज टू x प्लस 1 अपॉन x रहेगा। So this will be nothing but equal to log of AB by 4 होता है। 23rd रिजल्ट। देन 24th रिजल्ट मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ ताकि ये हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। लिमिट x is tending towards 0 if it is a raised to x plus b raised to x plus c raised to x minus 3 raised to x plus 1 अपॉन x रहेगा। तो this will be nothing but equal to, it will be log of ABC by 27 होता है, ठीक है। write down these three first of all, means 22nd, 23rd and 24th, ये तीन लिख लीजिए because I need space. प्रॉपर्टी नंबर 25, 25th प्रॉपर्टी लिख लीजिए आप, मतलब जो टाइम सेविंग रिजल्ट है, नॉट प्रॉपर्टी, आई कैन से टाइम सेविंग रिजल्ट। लिमिट x is tending towards 0 ab raised to x minus a raised to x minus b raised to x plus 1 upon x square रहेगा। So this will be equal to log a into log b। ये टाइम सेविंग रिजल्ट है। फिर 26th लिखिए आप, if you are having limit x is tending towards 0 a raised to x plus a raised to minus x minus 2 upon x square रहेगा, then the answer is nothing but log a the whole square। चलो अभी दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं। अभी से फॉर एग्जांपल 25th के लिए इफ दिस इज आस्क्ड, एक एग्जांपल 25th पे पहले ले लेता हूं मैं। लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अगर ऐसा दिया है 15 raised to x minus 5 raised to x minus 3 raised to x plus 1 अपॉन x square दिया है इवेल्युएट करने को। तो यू जस्ट कंपेयर अकॉर्डिंग टू दिस रिजल्ट, मतलब ये जो टाइम सेविंग रिजल्ट है उसके हिसाब से आंसर होता है log a into log b।
log a into log b, तो इसका आंसर क्या होगा? इट विल बी log 5 into log 3। बस हो गया, हमारा आंसर है यही। तो अभी log 5 into log 3 लिखो या log 3 into log 5 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट्स वन एंड द सेम थिंग। अभी इसके ऊपर एग्जांपल देख लेते हैं। तो इन दिस इफ वी हैव एक एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 9 raised to x plus 9 raised to minus x minus 2 अपॉन x स्क्वायर दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस टाइम सेविंग रिजल्ट होता है log a द होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू द टाइम सेविंग रिजल्ट दिस इज गोइंग टू बिकम log 9 द होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट्स इट, हो गया। बट प्लीज रिमेंबर log 9 द होल स्क्वायर कैन नॉट बी रिटर्न एज 2 log a। ये कॉमन मिस्टेक मैंने बहुत बार देखा है, स्टूडेंट करता है। तो ये आप नोट लिख लीजिए एट द टॉप ऑफ द पेज, राइट डाउन द नोट, log a the whole square is not equal to 2 log a। they are not equal, ऐसा नहीं लिख सकते आप। log a the whole square को 2 log a नहीं लिख सकते, it's not allowed, ठीक है। हाँ, 2 log a को 2 log of a square लिख सकते हो आप। 2 log a can be written as log of a square, ऐसा लिख सकते हो आप। a का स्क्वायर हो सकता है वो। राइटिंग दिस इज पॉसिबल, इसको ऐसा और इसको ऐसा लिख सकते हो, पर इसको ऐसा और इसको ऐसा नहीं लिख सकते। एंड दीज टू थिंग्स आर आल्सो नॉट इक्वल, ये और ये भी सेम नहीं है। रीडिंग ही वैसा है, देखो ना, इसको हम पढ़ते हैं log a द होल स्क्वायर, थ्योरी लेक्चर में भी मैंने समझाया था। एंड दिस इज log ऑफ a स्क्वायर, ये दोनों चीज अलग है, बट हाँ ये दोनों चीज सेम है। दीज टू थिंग्स आर इक्वल। चलो प्लीज नोट डाउन टिल हियर, देन विल मूव अहेड। नेक्स्ट रिजल्ट नंबर 27 लिखिए आप। लिमिट x is tending towards 0, I hope everyone must have finished this, ठीक है। x is tending towards 0, x into sin 1 by x is equal to 0 होता है। and same is with limit x is tending towards 0, x into cos 1 by x। अच्छा चलो नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, एक मिनट, रिजल्ट को मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखता हूँ, सो दैट आई कैन यूज द सेकेंड हाफ ऑफ दैट बोर्ड। एंड लिमिट x is tending towards 0, x into cos 1 by x, this is also equal to 0, they both are equal to 0, ठीक है। प्लीज नोट डाउन दिस। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 28, लिमिट x is tending towards 0, sin inverse x upon x is equal to 1। ये इनवर्स फंक्शन है, sin inverse of x is equal to 1, and this is also equal to, अगर लिमिट x tending towards 0, tan inverse x upon x रहेगा तो भी वो 1 होता है, और ये दोनों का रेसिप्रोकल भी 1 होता है, वो भी लिख देता हूँ। I am giving you each and every detail involved. Limit x is tending towards 0, if it is x by sin inverse x, then also it is equal to 1, and if it is limit x is tending towards 0, x by tan inverse of x, then also it is equal to 1, ठीक है। चलो please write down till here, then we'll move ahead। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट रिजल्ट 28 तक हो गया। 29 लिमिट x is tending towards 0, tan x minus sin x upon x रहेगा, then it is equal to 0। why so? upon x split कर दो, tan x upon x 1, sin x upon x 1, 1 minus 1 0। then 30th one लिख लीजिए आप, लिमिट x is tending towards 0, tan x
माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर रहेगा, देन ऑल्सो इट इज इक्वल टू 0. ओके, बट यही सेम चीज अगर ऐसा है, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, if it is given, if it is with us tan x minus sin x upon x cube है, so this will be equal to 1/2. ये सब आप टाइम सेविंग रिजल्ट, एज अ टाइम सेविंग रिजल्ट आप इसको याद रख सकते हो. ओके, so please make a note of these two, I mean to say these three, 29, 30, 31. ठीक है, तो आई होप यू मस्ट हैव रिटर्न. अब इसके पीछे रीजन की जरूरत नहीं है, वैसे हमने थ्योरी लेक्चर्स में किया हुआ है. व्हाट वी हैव टू डू, tan को sin अपॉन cos में कन्वर्ट करना है, और फिर जब आप उसको आगे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर आपको इसको 1/2 आएगा, और इसका सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आपको 0 आएगा. ठीक है, कैसे आया वो अभी मैं फिलहाल उसमें नहीं जा रहा हूँ, दैट वी हैव डन इन थियरी लेक्चर्स ऑलरेडी. ओके, प्लीज फिनिश इट ऑफ क्विकली. चलो, और एक टाइम सेविंग रिजल्ट है, वो भी आप लिख लीजिए 32. तब तक मैं ये लिखता हूँ. If it is limit x is tending towards 0, tan raised to mx minus sin raised to mx upon x raised to m plus 2 रहेगा, then this is nothing but equal to, ये हमारा आंसर हो जाएगा m/2. Write down this one. इसके ऊपर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ. लिमिट x is tending towards 0, tan raised to mx minus sin raised to mx upon x raised to m plus 2 रहेगा, तो this will be m/2. से फॉर एग्जांपल ऐसा दिया है, लिमिट x is tending towards 0. एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर. लिमिट से फॉर एग्जांपल tan raised to 8x माइनस sin raised to 8x upon x raised to 10 दिया है. तो अगर ये फॉर्मेट है, m दोनों जगह पे पावर सेम चाहिए, इट इज फॉर पॉजिटिव नंबर्स. ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए m शुड बी अ पॉजिटिव नंबर, एंड ये 8 + 2 10 होता है, तो आंसर इज नथिंग बट 8/2, एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 4. यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 10 होगा, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, वॉट एवर इट इज, दैट वे इट गोज. इसका आंसर 4 है. So please note down this also. Okay, students. So now let's move on to point number 33. Write down. लिखिए आप ऐसा. Indeterminate forms. कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं लिमिट्स में. I have told to you about this in the theory lectures also, if you recollect. Indeterminate forms, कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं लिमिट्स के जो हम डायरेक्टली इवेल्युएट नहीं कर सकते लिमिट का वैल्यू डाल के. Then there is some different way in which we have to evaluate these kind of examples. तो कौन से indeterminate forms write down? 0/0 फर्स्ट फॉर्म. उसके बाद होता है infinity/infinity, indeterminate फॉर्म है. फिर infinity + -infinity, indeterminate फॉर्म होता है. We can't determine in this. फिर 0 into infinity, then 0 raised to 0. ठीक है, फिर उसके बाद infinity raised to 0, और फिर उसके बाद 1 raised to infinity. ये सारे indeterminate फॉर्म्स है. 0/0, infinity/infinity, infinity +-infinity, 0 into infinity, 0 raised to 0, infinity raised to 0, and 1 raised to infinity. They are all called as indeterminate forms. We should be knowing कि indeterminate forms है. अभी 34th, and this is a very important rule which I am now going to give you students. ये बहुत important rule है. आप लिख लीजिए, बाद में मैं इसको बताता हूँ क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका. Write down this. Now, when we are pronouncing this, this is written as L'Hospital's rule.
हाँ, आप कैसे भी पढ़ो इसको, एल हॉस्पिटल रूल पढ़ो. Sometimes generally when I pronounce I called it this read it this as L'Hopital rule. कुछ वर्ड जिसमें से साइलेंट है, तो we read this as L'Hopital rule. लिखते वक्त हम एल हॉस्पिटल रूल लिखते हैं इसको, बट बोलते वक्त भी कॉल इट एज अ L'Hopital रूल. और इसको शॉर्ट में आई कॉल दिस एज LH रूल. लेट अस रिमेंबर दिस नेम, LH रूल शॉर्ट में. चलो, so write down till here, then we'll move ahead. Now this LH rule है, अभी पहले चलो मैं आपको समझा देता हूँ. LH rule says what? Have a look. Now if we are having this, okay, write down. चलो LH rule के लिए पहले आप लिख लीजिए. It is applicable. It is applicable to the problems. It is only applicable. It is ऐसा लिखो आप. It is only applicable to the problems of form 0 by 0 और infinity by infinity. ये जो L'Hopital रूल है या एल हॉस्पिटल रूल है, जैसे भी आप पढ़ो उसको, whatever you pronounce, it is only applicable to the problems which are of the type 0 by 0 और infinity by infinity. अभी L'Hopital rule बोलता क्या है? Please pay attention. Now the L'Hopital rule says that if we are having the problem, say for example, हमारे पास है limit x tending towards a fx upon gx दिया हुआ है. If we have been given division of the two functions, और अगर problem 0 by 0 फॉर्म का है या infinity by infinity फॉर्म का है, then L'Hopital suggested कि we will find out the derivative of the function. Please pay attention, बाद में आप लिख लेना. हाँ, so what does L'Hopital rule suggested? What does L'Hopital suggested? That limit x is tending towards a, we find out the derivative of fx. So fx का derivative is nothing but f dash of x, and gx का derivative is nothing but g dash of x. Now we have done differentiation. Differentiation में एक u by v rule था, हमें u by v rule नहीं यूज करना है. We have to find out the derivative of the numerator separately. न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना है. fx का डेरिवेटिव f dash of x होता है और gx का डेरिवेटिव अलग से फाइंड करना है. डिनोमिनेटर का gx का डेरिवेटिव g dash of x होता है. Now L'Hopital says कि अगर ये 0 by 0 फॉर्म है वापस, या infinity by infinity फॉर्म है, तो और एक बार डेरिवेटिव लेने का. So what will this become? This will be equal to, अगर ये वापस 0 by 0 फॉर्म है या infinity by infinity फॉर्म है, तो वापस एक बार डेरिवेटिव लेने का. तो fx का डेरिवेटिव हो जाएगा f double dash of x, एंड gx का डेरिवेटिव विल बिकम g double dash of x. और ये प्रोसीजर हमें करते रहना है जब तक हमें एक फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाता है. थर्ड टाइम डेरिवेटिव, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम लेते जाना है जब तक हमें फाइनाइट आंसर या फाइनाइट वैल्यू नहीं मिल जाता है. So I repeat, very important rule. This is for problem solving. Majority of the problems L'Hopital rule से ही solve होते हैं limits में. ठीक है? It is only applicable to the problems of the form 0 by 0 और infinity by infinity. सिर्फ यही दो टाइप्स को वो applicable है. तो इसके ऊपर मैं बॉक्स डाल देता हूँ. तो क्या करना है, अगर 0 by 0 या infinity by infinity फॉर्म है, तो fx का डेरिवेटिव f dash of x, gx का डेरिवेटिव g dash of x. फिर भी 0 by 0 या infinity by infinity, तो वापस एक बार डेरिवेटिव लेना है. ऐसे लेते जाना है जब तक हमें आंसर नहीं मिल जाता है. अभी एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. ऑब्वियसली हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे व्हेन वी वांट टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग. अभी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे. नाउ दैट एग्जांपल इज, इफ इट इज गिवन टू मी लिमिट x is tending towards 2. ठीक है, इफ इट इज गिवन टू मी, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सॉल्व करना है x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2, इस लिमिट को इवेल्युएट करना है. ठीक है, नाउ व्हाट आई डू इज, ऑब्वियसली हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट यू ऑब्जर्व इन दिस प्रॉब्लम विल यूज L'Hopital रूल. अभी जब मैं x का वैल्यू 2 डालूंगा तो 4 माइनस 4 0 होता है, 2 माइनस 2 भी 0 होता है. so this is 0 by 0 फॉर्म. Now since this is 0 by 0 form, L'Hopital rule क्या बोलता है कि हमें डेरिवेटिव लेना है.
इसका डेरिवेटिव लेना है, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, दोनों का डेरिवेटिव लेना है। तो प्लीज पे अटेंशन, देन यू कैन राइट डाउन द एग्जाम्पल। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वी ऑल नो इट इज 2x माइनस 4 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 0। आई एम राइटिंग डाउन द स्टेप्स अपॉन, तो डेरिवेटिव ऑफ द न्यूमरेटर इज नथिंग बट 2x और 4 का तो 0 हो गया, x का डेरिवेटिव विल बी 1 एंड 2 का डेरिवेटिव विल बी 0। तो क्या बच गया हमारे पास, वी आर नाउ लेफ्ट आउट ओनली विद लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2 ऑफ 2x बच गया। देखो डिनोमिनेटर अभी नॉन जीरो है, डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो, तो डालो x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 डालेंगे तो आंसर इज 4। so the value of the limit is nothing but equal to 4. problem is over. चलो make a note of this example which we have done by using L'Hopital rule. एक simple example लिया ताकि आपको समझ में आ जाए, बाकी जब हम problems start करेंगे, MCQ start करेंगे तो बहुत सारे examples ये L'Hopital rule के ऊपर आने वाले हैं। Okay, please make a note till here. Okay, now let's move on to the next part students. Now obviously क्योंकि अभी हमें यहाँ पे लगता है derivative, we have to take the derivative of the functions. Now there is one concept, derivative of composite functions. If you are already familiar with it, well and good, otherwise मैं थोड़ा सा short में introduction देके आपको formulas भी दूंगा। Okay, so write down next heading, आप लिख लीजिए continuation of the same, derivative of composite functions, ऐसा heading दे दो आप। 45th you write down derivative of composite function। ठीक है, ये हेडिंग दे दीजिए आप। नाउ डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शंस में ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज अ कंपोजिट फंक्शन? तो वी हैव डन इट इन सेट रिलेशन एंड फंक्शन में आपने किया, फंक्शंस वाले पार्ट में किया हुआ है। कंपोजिट फंक्शन मींस अ फंक्शन दैट इज ऑब्टेन्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर फंक्शंस, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड एज एन कंपोजिट फंक्शन। अब ये कंपोजिट फंक्शन का कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो राइट डाउन, एक एग्जांपल ले लेते हैं कंपोजिट फंक्शन का। राइट डाउन, इफ वी आर टेकिंग डाउन एग्जांपल ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर डेरिवेटिव पे जाएंगे। तो इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन, एक फंक्शन हम ले लेते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, एंड अनदर फंक्शन वी टेक एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लिया और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लिया। नाउ let us find out fog of x. अभी fog of x means how do we write down this as? This is written as f of g of x. So that's nothing but equal to f of. Now what is gx? So gx is nothing but sin x. gx की जगह पे sin x आएगा। अभी क्या करना है हमें, ये sin x डालना है, किसमें डालना है? f में। We have to substitute sin x in f, बट किसके जगह पे? x के जगह पे। तो x के जगह पे sin x डालना है हमें। See what we have to find out, f sin x. What will this become? f sin x will be nothing but log of sin x. तो ये जो फंक्शन मिला हमें fog of x, this function which we have obtained log sin x, this is called as an composite function, क्योंकि दो फंक्शन को कंबाइन करके एक फंक्शन मिला, that is why it is called as an composite function. log sin x is a single function, log x अलग फंक्शन है, sin x अलग फंक्शन है, दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन मिला, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, उल्टा इसका प्रोसीजर भी पॉसिबल है, लाइक वी कैन फाइंड आउट g of f of x, so it is nothing but g of fx, so that is nothing but g of fx। अभी fx क्या है? तो fx है log x। अब log x किस में डालने का है? log x g में डालने का है। किसके जगह पे डालने का है? x के जगह पे।
तो सी ओवर हियर, x के जगह पे क्या डालने का है, log x डालने का है, किसमें, g में। So what will this become, x के जगह पे log x डालो, so this will be nothing but sin of log x, and this is nothing but our geo f of x. So such a function is called as an composite function. ये भी composite function है और ये भी एक composite function है, क्योंकि दो functions को combine करके एक function मिला है। तो अभी हमें क्या सीखना है, what we have to learn, we have to learn derivative of such functions जो log sin x है, sin log x है, बहुत सारे functions combine हो सकते हैं, logarithmic with exponential, exponential with trigonometric, trigonometric with algebraic, algebraic with exponential, ऐसे बहुत सारे हैं। And this part is to be done in 12th standard. ये जो composite function का concept है, this comes in 12th standard, but we require in limits, तो हमें सीखना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको क्या देने वाला हूँ, I am going to give you the list of formulas for composite function. Composite function के list of formulas देने वाला हूँ, वो आपको लिखना है। चलो, so write down first this, then we'll write down the list of formulas of composite functions. Okay, so I hope all the students can see my screen. ठीक है, अब लिखिए ये heading, derivative of composite functions. जो composite function के derivative के formulas है वो हमें याद करना है। See the first formula, d by dx of fx raised to n is equal to n into fx raised to n minus 1 into f dash of x होता है। Okay, the first formula. I'm moving that cursor so you can see that. Second formula लिखिए, d by dx of under root of fx, so that is equal to 1 by 2 root fx into f dash of x. Third one, d by dx of 1 by fx is equal to minus 1 by fx the whole square into f dash of x. So first three algebraic है. Then fourth onward, fourth से लेके ninth तक, they are all trigonometric composite functions. So fourth one, d by dx of sin fx is equal to cos fx into f dash of x. Fifth one, d by dx of cos fx is minus sin fx into f dash of x. Sixth one, d by dx of tan fx is nothing but equal to sec square fx into f dash of x. ठीक है, फिर उसके बाद seventh one है d by dx of cot fx, which is nothing but equal to minus cosec square fx into f dash of x. Eighth one, d by dx of sec fx is sec fx into tan fx into f dash of x. Ninth one, d by dx of cosec fx is nothing but equal to minus cosec fx into cot fx into f dash of x. ये trigonometric हो गया 9 तक. So if you are a 12th standard student, you are already familiar with this formulas of composite functions if you have done the topic differentiation. If you are 11th standard students, this is concept is new to us. तो ये formulas आपको याद रखने पड़ेंगे problem solving के लिए, क्योंकि जब हम problem पे जाएंगे L'Hopital rule apply करेंगे तो we need these formulas. Okay, then 10th and the 11th one formula is exponential. So d by dx of e raised to fx is equal to e raised to fx into f dash of x होता है. 11th one, d by dx of a raised to fx is equal to a raised to fx into log a into f dash of x होता है. Then the 12th and the 13th one are the logarithmic functions. d by dx of log fx is equal to 1 by fx into f dash of x होता है. And the 13th one, d by dx of log fx to the base a is equal to 1 by fx into log a into f dash of x होता है. Now see in that yellow box where what is f dash of x? So it is nothing but d by dx of fx. जो fx का derivative है उसका notation is nothing but f dash of x. So these are all the 13 very important formulas. So please note down this in your notebook first of all. So now students, I have shown you the list of formulas of the composite functions. अभी कुछ थोड़े से 2-4 examples ले लेते हैं and then we'll move on to the problem solving. Okay? चलिए लिखिए examples.
डाउन एग्जाम्पल नंबर 1, फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लीजिए आप, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव हमें लेना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x प्लस। अब देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। साइन फंक्शन इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों को कंबाइन करके एक फंक्शन मिला है, तो इट्स अ कंपोजिट फंक्शन। नाउ व्हिच फॉर्मूला वी नीड टू अप्लाई, इफ यू ऑब्जर्व ओवर हियर वी नीड टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर साइन एफ एक्स। ये जो अंदर वाला फंक्शन है वो उसको हमें एफ एक्स एज्यूम करना है। What we are doing, remember, whenever we are finding out derivative of the composite function, we have to move from left to right. जो सबसे बाहर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव पहले आएगा। ओके, नाउ यू सी इन योर नोटबुक, अभी मैंने आपको देखो लिख के दिया है, चलो लिख देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स। ओके, सो व्हाट इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स स्टूडेंट्स? तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एफ एक्स इज नथिंग बट cos fx into f dash fx होता है। फर्स्ट एग्जांपल है तो स्टेप वाइज समझा देता हूँ, ठीक है। तो दिस विल बी फर्दर इक्वल टू, अब कंपेयर करो, ये साइन फंक्शन है और ये fx है, तो साइन fx का डेरिवेटिव क्या होता है? cos fx। रिटर्न दिस विल बी इक्वल टू cos fx is nothing but 2x plus 3 into d by dx। f dash of x means what? It is d by dx of fx। तो d by dx किसका? fx का। एंड स्टूडेंट fx क्या है? fx is nothing but 2x plus 3। So I repeat, sin fx का डेरिवेटिव is cos fx into f dash of x। एक बार जब आपको आदत हो जाएगी ना इसका डेरिवेटिव फाइंड करने की, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। तो इफ इट इज अ न्यू कंसेप्ट टू यू, थोड़ा सा टाइम और प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा एग्जाम्पल, बट इट्स अ सिंपल कंसेप्ट। तो cos fx into f dash of x आया, ठीक है। अभी क्या करना है, we have to take the derivative of this। तो ये जो d by dx है वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, u plus v रूल, ठीक है। तो I need to rub this out because I'll have to write down on the next line। So this will be further equal to, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? This will be equal to cos of 2x plus 3 will remain same into 2x का डेरिवेटिव is 2 and 3 का डेरिवेटिव is 0। What is the final answer? This can be further written as 2 into cos 2x plus 3 is the final answer। So d by dx of sin 2x plus 3 is what? So it is nothing but 2 into cos 2x plus 3। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे फाइंड करना होता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस टेक d by dx of, एक लॉगरिथमिक फंक्शन ले लेते हैं, log of 5x minus 7। ठीक है, लेट अस टेक दिस। अब बेस नहीं लिखा है, मींस इट इज बेस e। अभी सबसे पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। तो d by dx of log fx। So what is d by dx of log fx, students? So d by dx of log fx is nothing but 1 by fx into f dash of x। तो आप इस प्रॉब्लम को इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर कीजिए। व्हाट इज fx? दिस इज fx। देखो, अब जब हम डेरिवेटिव लेते हैं, हाउ डू वी टेक द डेरिवेटिव? वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले सबसे पहले बाहर से अंदर की तरफ जाना है, तो पहले लॉग वाले का डेरिवेटिव आएगा, इसीलिए पहले लॉग वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो log 5x minus 7, तो log fx is 1 by fx, so this will be what? 1 by fx। so 1 by 5x minus 7 into d by dx of 5x minus 7 आएगा। so this is further equal to 1 by 5x minus 7 will remain same। अब आपको पता है ये तो सिंपल रूल है, ये जो d by dx है वो दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, u minus v रूल। 5x का डेरिवेटिव इज 5 एंड 7 का डेरिवेटिव इज 0। so our answer is nothing but 5 upon 5x minus 7। so derivative of log 5x minus 7 is nothing but 5 upon 5x minus 7। ठीक है, प्लीज नोट डाउन।
हर एक एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बिकॉज जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे यही सारे फॉर्मूलेज हमें आगे जाके काम आने वाले हैं। कंपोजिट फंक्शन के जो फॉर्मूलेज हैं दे आर गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। चलो अभी और एक ले लेते हैं, थर्ड एग्जाम्पल, ये भी लॉग वाला ही लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे। नाउ आई हैव टोल्ड टू यू व्हाट वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से होते हुए राइट की तरफ जाना है। तो अभी देखो सबसे पहले कौन आता है, लॉग आता है, लॉग के बाद रूट आता है और रूट के अंदर 2x माइनस 1 है, तो टोटल 3 फंक्शन है। तो पहले लॉग का डेरिवेटिव, फिर रूट वाले का डेरिवेटिव, फिर 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एफ एक्स, ठीक है। तो व्हाट इज वर्किंग एज एफ एक्स राइट नाउ इज दिस, ये जो रूट वाला टर्म है रूट 2x माइनस 1 इज एफ एक्स। अभी मैंने लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला लिखा था इसलिए वापस नहीं लिख रहा हूँ। ओके चलो अप्लाई करो आप, आई गिव यू टाइम ऑफ 1 मिनट, अप्लाई लॉग एफ एक्स का फॉर्मूला एवरीवन। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, लॉग एफ एक्स का होता है 1 बाई एफ एक्स। तो व्हाट इज एफ एक्स, 1 बाई अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1, excuse me, 1 by fx into d by dx of fx. But what is fx? So fx is under root of 2x minus 1. अभी इसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स, सॉरी। तो विच फॉर्मूला विल वी अप्लाई ऑन दिस, यू नो, देखिए d by dx of root fx. What is d by dx of root fx? So it is nothing but 1 by 2 root fx, 1 by 2 root fx into f dash of x. अभी लॉग का डेरिवेटिव हो गया, अब किसका डेरिवेटिव लेना है स्टूडेंट्स हमें, वी आर सपोज टू टेक डेरिवेटिव, ये रूट वाले का डेरिवेटिव लेना है, बट सिर्फ रूट एक्स नहीं है, इट इज रूट ऑफ 2x माइनस 1, तो रूट एफ एक्स का फॉर्मूला, ये ध्यान देना है हमें, दैट इज व्हाट वी हैव टू लर्न। अभी आप मार्क करो व्हाट इज एफ एक्स कंपेयर, तो ये जो रूट के अंदर है वो एफ एक्स है, 2x माइनस 1 इज एफ एक्स, ठीक है, राइट डाउन दिस पार्ट। So write down what will this be equal to, 1 by root 2x minus 1 into root fx का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 by 2 under root of 2x minus 1 into d by dx of 2x minus 1 आएगा। Why? Check out this formula, d by dx of root fx is 1 by 2 root fx into f dash of x होता है। Write down। अभी देखो क्या होगा आगे जाके, ये जो d by dx है वो ये दोनों को स्प्लिट हो जाएगा, so write down this will be further equal to 1 upon 2 into root 2x minus 1 into root 2x minus 1 is nothing but 2x minus 1 into 2x का डेरिवेटिव is 2, 1 का डेरिवेटिव is 0, ठीक है। प्लीज पे अटेंशन वेरी केयरफुली, ध्यान से देखो आप, 2x का डेरिवेटिव 2 है, ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो गए तो रूट एलिमिनेट हो गया, ये 2 पहले से था, ऑब्वियसली ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2x माइनस 1। तो लॉग अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या है, तो इट इज नथिंग बट 1 अपॉन 2x माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही सारे फंक्शंस के लिए होगा, साइन विद logarithmic, sine with trigonometric, trigonometric with logarithmic, logarithmic with exponential, exponential with trigonometric, is true for all, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल एग्जांपल भी ले लेते हैं, लास्ट वन मे बी, थर्ड हो गया, अभी फोर्थ ले लेते हैं एग्जांपल।
Fourth example, d by dx of 5 raised to sin x एक्सपोनेंशियल और वो ट्रिग्नोमेट्रिक है कंबाइंड है। ठीक है, अभी देखिए कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, तो विल बी अप्लाइंग d by dx ऑफ a रेज टू एफ एक्स। ए के पावर में फंक्शन है, मतलब नंबर के पावर में फंक्शन है, तो a रेज टू एफ एक्स का क्या फॉर्मूला है, तो इट इज डेरिवेटिव का, तो इट इज नथिंग बट a रेज टू एफ एक्स इंटू लॉग a इंटू एफ डैश एक्स, ऐसा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट विल दिस बिकम, राइट डाउन, कंपेयर करो, a के जगह पे 5 है और fx के जगह पे sin x है, तो क्या मिलेगा, इट विल बी 5 रेज टू sin x a रेज टू fx, तो 5 रेज टू sin x इंटू log 5 log a का वैल्यू 5 है, तो log 5 इंटू d बाई डी एक्स ऑफ sin x, ये fx है। अब कंपेयर करो, प्रीवियस सारे एग्जांपल्स में कंपेयर करके बताया, दिस इज fx, तो a रेज टू fx इंटू log a इंटू f डैश ऑफ x होता है। ठीक है, अभी क्या होगा, तो वी ऑल नो d बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है, तो इट इज नथिंग बट cos x। राइट डाउन नेक्स्ट स्टेप एंड द लास्ट वन, ये मैं रब कर रहा हूँ, इफ यू हैव नॉट रिटन राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑफ डेरिवेटिव। so इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, फाइनली व्हाट डू वी राइट डाउन द आंसर एज, दिस इज 5 रेज टू sin x into log 5 into sin x का डेरिवेटिव इज नथिंग बट cos x, दैट्स इट, प्रॉब्लम इज ओवर। ठीक है, अभी लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं एंड देन विल मूव ऑन टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ लिमिट्स। ये तो कंसेप्ट मेरे को आपको सिखाना है, बिकॉज विदाउट दिस वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कंपोजिट फंक्शन के सारे प्रॉब्लम्स हमें लिमिट्स में ही आने वाले हैं। फिफ्थ एंड द लास्ट एग्जांपल फॉर टुडे। ओके, चलिए लिखिए, d बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल रेज टू 5, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें। नाउ यू ऑब्जर्व, पावर में नंबर है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, तो वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ fx रेज टू n। तो fx रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है स्टूडेंट, तो इट इज n इंटू fx रेज टू n माइनस 1 इंटू f डैश ऑफ x। ये कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अभी आप कंपेयर करो ये दोनों को, तो n के जगह पे हमारे पास 5 है एंड व्हाट इज fx के जगह पे हमारे पास है ये fx, दिस इज अवर fx। हाँ, अभी ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, व्हाट विल दिस बिकम, so this will be equal to n, तो n का वैल्यू है 5 इंटू fx, so what is fx, so fx is 2x square plus 3x plus 1 to the power n minus 1, तो ये आ जाएगा 5 minus 1 into f dash x, f dash x means d by dx किसका, fx का, and what is fx, so fx is nothing but 2x square plus 3x plus 1 है। ठीक है, राइट डाउन टिल हियर, n इंटू fx रेज टू n माइनस 1 इंटू f डैश ऑफ x, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। फॉर्मूला लिख लीजिए, मैं रब कर दूंगा इसको। चलो फिलहाल सामने रखता हूं मैं। तो राइट नाउ दिस विल बी फर्दर इक्वल टू 5 रिमेनिंग सेम, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 होल टू द पावर 4, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। अब ये जो d बाई डी एक्स है, हर एक टर्म को स्प्लिट हो जाएगा बाय द रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसका डेरिवेटिव हमें मिलेगा 4x, 3x का डेरिवेटिव होता है 3, 1 का डेरिवेटिव होता है 0, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 टू द पावर 5
is nothing but this. So see, I have given you an overview of how to find out the derivative of all the composite functions. ठीक है? This is going to help us in limits के upcoming examples. ठीक है? तो जो example वाला procedure है वो हम next lecture से start करेंगे. So please be present for that and please revise this synopsis very thoroughly. चलो, please note down till here, then we'll stop. Okay. अच्छा, now I hope you must have written this. और एक चीज मुझे याद आई, वो भी हम लिख लेते हैं. So derivative of composite functions I have explained. So I rub this off now. Give me a minute. Now derivative of जो composite function था उसको मैंने point number 35 number किया था. If I'm not wrong on the number, you can check out. अभी point number 36 लिख लीजिए. कुछ summation के formulas है which we have done it in special series under the topic sequences in series, वो आप note down कर लीजिए. So 36 का first one, write down summation of R. R takes the values from 1 to n. So summation of R is nothing but n into n plus 1 by 2. इसको हम बोलते हैं this is sum of the first 10 natural numbers. हाँ, चाहिए तो मैं वो भी लिख देता हूँ. It's actually written this way. Summation of R. So it is nothing but 1 plus 2 plus 3 and so on up to plus n. So it is given by n into n plus 1 by 2. Sum of the first 10 natural numbers find करने का ये फॉर्मूला है. डिटेल में लिख देता हूँ. चलो, सेकेंड वन आप लिख लीजिए. Summation of R square. R takes the values from 1 to n. ठीक है, 1 to n. So 1 square plus 2 square plus 3 square and so on up to n square. Sum of the squares of the first 10 natural numbers is given by n into n plus 1 into 2n plus 1 by 6 होता है. Then the third one, summation R is equal to 1 to n of R cube. That is nothing but 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on up to nothing but n cube, and that is nothing but equal to n square into n plus 1 the whole square by 4 होता है. Then the fourth one, summation of R is equal to 1 to n of 1, means 1 plus 1 plus 1 and so on up to plus 1. कितनी बार ऐड किया हमने? n times. So if we add this n times, the answer is nothing but equal to n. Obviously 1 को आप 10 times ऐड करोगे तो आंसर 10 मिलेगा. 1 को 100 times ऐड करोगे तो आंसर 100 मिलेगा. तो 1 को n times ऐड करोगे तो आंसर n मिलेगा. ठीक है. Now we have done properties of summation also. Under this topic we have done the properties of summation also. वो सब मैं नहीं लिख के दे रहा हूँ. That is already, I assume कि you know those things and you should know. तो जो important है वो मैंने आपको लिख के दिया हुआ है. Please make a note of this and then we stop. ठीक है. So I hope you must have written this. So please revise the synopsis before you come for the next lecture. सारा synopsis revise करो. जितने भी important points लिख के दिए हैं, L'Hopital rule है, indeterminate form है, L'Hopital composite function है, derivative है उसका, सारे points revise करो. Then we'll move on to the problems next time. चलो, we stop for today. Thank you.